Hello students, beta. As you know that we are doing your chapter number 11, conic sections. Conic sections. And today is beta 7th November 2020. Clear बच्चे? And my dear students, today we will study about ellipse. Which topic we will study beta today? We will study today ellipse. What is ellipse? An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed points in the plane is a constant. Is it clear beta? Now the two fixed points are called foci. जो ये two points होंगे, the two fixed points are called foci, plural of focus. ठीक है, of ellipse. Now just have a look at this diagram. In this, here we have A and B. This is your vertex. This is your vertex. ठीक है बेटा? This is our center O, and from here we have C and D. Is it clear beta? AB is greater than CD and our CD is here minor axis. जो CD है वो minor axis है और जो आपका AB है that is major axis. Is it clear? यहाँ पर आपका F1 है फोकस 1, यहाँ पर आपका F2 है फोकस 2. आपका ये जो डिस्टेंस है C, तो ये भी आपका डिस्टेंस जो होगा C होगा बेटा. ठीक है, और जितना आपका ये वाला पॉइंट है CO इज इक्वल टू OD. CO इज इक्वल टू OD. लेट्स से इट इज B. ठीक है, और ऐसे ही आपका बेटा AO इज इक्वल टू OB, दैट इज इक्वल टू A. क्लियर है? ये पूरा यहां से यहां तक आपका A, यहां से लास्ट तक A. इज इट क्लियर? है ना? नाउ जस्ट
See over here, the midpoint of the line segment joining the foci is called the center. ठीक है, सेंटर मैंने आपको बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, माइनर एक्सिस बता दिया, मेजर एक्सिस बता दिया, वैल्यूज बता दिया आपके। अच्छा, यहाँ से हम कुछ चीजें जो हैं वो लर्न कर सकते हैं अगर हम इस डायग्राम को जर्नल फॉर्म की तरह यूज करें तब। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो आपके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी दैट विल बी 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, and distance between two foci, distance between two foci, that is f1 and f2, that is your 2c. Is it clear beta? Hope the diagram is been clear to you. Now relationship between this is your 11.5 topic number. Now beta, topic number 11.51, relationship between semi major axis, semi minor axis and distance of focus from the center of the ellipse. Is it clear बेटा? ठीक है, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? By using the definition of ellipse, by using the definition of ellipse, अगर हम इस ellipse की definition को यूज करें तो we can say that a is equal to under root of b square plus c square. a क्या है बेटा यहाँ पे आपका? सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है, a is your, that is semi minor axis whole square plus और आपका C कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ OF1 और OF2 होल स्क्वायर. इज इट क्लियर बेटा? Also C is equal to under root of a square minus b square. ठीक है, that is your OF1 is equal to OF2, that is equal to C, that is equal to a square minus b square under root. Is it clear beta? Now special cases of an ellipse 11.52, special cases of an ellipse, किसी भी ellipse के special cases. The special cases of ellipse, let's see in the equation
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर if we keep a fixed and vary c from 0 to a, the resulting ellipses will vary in shape. जो आपके रिजल्ट से इलिप्स की शेप आएगी, they will be varying, they will be different. First case here is when c is 0, both foci merge together with the center of the ellipse and a square is equal to b square, that is a is equal to b. So the ellipse becomes a circle. अगर आपका C0 हो जाएगा ना बेटा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जो आपका इलिप्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू योर सर्कल. Then is your case 2 when C is equal to A, then B is equal to 0. The ellipse reduces to the line segment F1, F2 joining the two foci. Simply ऐसा आपका फिगर बन जाएगा F1 और F2. ठीक है, इलिप्स का जो कर्व है वो आपका रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज योर इसेंट्रिसिटी. What is the next topic beta? Next topic is eccentricity. 11.5.3 eccentricity. What could be eccentricity? Let me tell you the definition first. The eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertex of the ellipse. ठीक है, eccentricity is denoted by small e, and E is equal to C upon A.
दैट इज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इज इट क्लियर बेटा? व्हाट इज सी योर? सी क्या होता है वैसे आपका, जो मेन आपका डायग्राम मैंने कराया था यहां से, व्हाट इज योर सी? योर सी इज आइदर OF1 अपॉन ए। ए इज योर मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। OF1 और OF2 और है बेटा ये या ये अपॉन मेजर एक्सिस। क्लियर बच्चे? स्टैंडर्ड इक्वेशंस स्टैंडर्ड, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू सी, ये भी लिख सकते हैं। Now is your 11.54 topic number, that is standard equations of an ellipse। ellipse के स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक तो आपका बेटा मेजर एक्सिस की तरफ इलिप्स अगर बने, ठीक है, तो उस केस में सपोज दिस इज योर y एंड दिस इज योर x एक्सिस। यहां पे आपका ऐसे बने, जो मेजर एक्सिस है वो x पे आए, ठीक है, ऐसे बड़ा हो। दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज योर सेंटर पॉइंट, दिस इज योर F1। F1 के कोऑर्डिनेट्स -C,0, F2 के कोऑर्डिनेट्स C,0 और ये कोई पॉइंट है बेटा P, X, Y, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? अब इस केस में आपकी जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। दूसरा आपका इस फॉर्म में हो सकता है ऐसे, इज इट क्लियर? इन दिस विल बी B,0 minus B,0 0,A and बच्चे 0, -A and this is your center, this is your O, C focus and this is your focus to O, C। इसमें फोकस आपका x एक्सिस पे है, इसमें आपका फोकस y एक्सिस पे है, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस है दोनों में। जिसका फोकस x एक्सिस पे होगा उसकी इक्वेशन ये आएगी और जिसका फोकस y एक्सिस पे होगा उसकी इक्वेशन ये आएगी। दोनों में थोड़ा सा फर्क है लेकिन क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा बहुत सारा। इज इट क्लियर बेटा? ना बच्चा these two were your standard equations of ellipse। और इन इक्वेशन से बाद कुछ नोट पॉइंट्स हैं आपके पेज नंबर 261 के लास्ट पे।
लास्ट पैराग्राफ वो आप रीड आउट कर लेना एक बार, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर सेम विच आई हैव टोल्ड, जस्ट आप एक बार उसका नोट्स बना लीजिए। देन इज योर लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम हमने पैराबोला में भी किया था। ये लेटस रेक्टम किसका? एलिप्स का। इज इट क्लियर बेटा? इन दिस हम कौन सा वाला ले रहे हैं? वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा लेटस रेक्टम जो है देखो, अगर हम ये इलिप्स लेते हैं, इस इलिप्स के अंदर हमारा ये फोकस 1 था, ये सेंटर था, ये फोकस 2 था। जब बेटा हम इस फोकस से एक पॉइंट निकालेंगे और इस फोकस से एक लाइन निकालेंगे, तो ये हमारा लेटस रेक्टम होगा। ये L और L1, L एंड L1 आर आवर लेटस रेक्टम। ध्यान रहेगा आपको लेटस रेक्टम कौन सा होता है, ठीक है। चलिए, अब हमारे L की वैल्यू निकलेगी और L वैल्यू विल बी p² अपॉन a। इस फॉर्मूले से हम L निकालेंगे इफ द इक्वेशन इज दिस। इज इट क्लियर? अगर हमारा इफ दिस इज द इक्वेशन, अगर हमारा इफ x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1 वाला है, देन आवर लेटस रेक्टम विल बी L is equal to 2b² upon a। Is it clear बेटा? Since the ellipse is symmetrical with respect to y, of course it is symmetrical to the both coordinate axes. Is it clear beta? Then the coordinates of A are C, L। ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने हैं? C, L। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे L की वैल्यू ये आएगी, दिस इज L, ठीक है। और हमारा टोटल जो बाद में आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको बेटा एक बार दोबारा से देख लो, ठीक है। मैं इसको काट देती हूँ एक बार। इफ दिस इज द इक्वेशन, हमारे L की वैल्यू तो होगी b² अपॉन a। ये हमने लाइंस बना ली L1, यहाँ कोऑर्डिनेट्स जो हैं C, L, यहाँ से हमारा जो ये L कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू हो गई L इज इक्वल टू b² a। अब बेटा हमारा दिस इज आवर O ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहां से हमारा जो है ये जो पॉइंट है बेटा, यहां से यहां तक दिस, ये L1 है, इसको हम L2 अगर कर लें तो L1 F2 इज इक्वल टू L2 एंड F2। ये आपकी बुक में दूसरे तरह का डायग्राम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको बता देंगे। पहले ऐसे देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वल हो गया, तो हमारे इनके वैल्यू आएगी 2b² अपॉन b² अपॉन a।
लेकिन हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो तो पूरा है ना बेटा, L1F2 प्लस L2F2, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा 2b² a हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके बुक वाला डायग्राम आपको बना देती हूँ। इन योर बुक द डायग्राम इज मेड लाइक दिस। ये आपका F1, ये आपका F2, ये आपका सेंटर, दिस इज योर सेंटर ओवर, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ से आपकी बुक के अंदर A और B ऐसे ले रखा है और ये C और D ले रखा है। एज पर योर NCERT बुक AB एंड CD आर योर लेटस रेक्टम, और इस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर C, L, दैट इज C, L। यहाँ के अकॉर्डिंग आपके L की वैल्यू है बेटा b²/a, और आपका AF2 इज इक्वल टू BF2, दैट इज इक्वल टू b²/a, एंड योर लेटस रेक्टम AB इज इक्वल टू AF2 प्लस BF2, दैट विल बी 2b²/a। इसका मतलब जब आपको ये इक्वेशन गिवन होगी, यू विल हैव टू यूज दिस लेटस रेक्टम। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, आपके एग्जाम्पल नंबर 9 में बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फाइंड द coordinates of foci, the vertex, the length of major axis, length of major axis, the minor axis, and then is your eccentricity, and your latus rectum of the ellipse। कौन से वाले का? x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। √5 का √5, 5² y²/3² इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपकी जो है A वैल्यू इज योर 5 बेटा एंड B वैल्यू इज योर 3, ठीक है। अब हमारे C की वैल्यू, जो हमने फॉर्मूला पीछे याद किया था, C की वैल्यू देखो, यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। योर वैल्यू ऑफ C इज √A² - B²। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला A² - B² दैट इज 5² - 3² that is 25 - 9 that is √16 that is 4, ठीक है। नाउ आवर फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा? देखिए ये वाला है ना, -c,0। F1 के तो क्या थे? -c,0। F2 के क्या थे? c,0, ठीक है। तो c की वैल्यू -4, ये इज इट क्लियर? देन वाज योर वर्टेक्स कौन से थे आपके? these were your vertexes, and in this vertex का आपका कौन सा निकलेगा? -a,0 v1 v2 a,0, so -5,0 and 5,0। then is your
Major axis, length of major axis is 2a, that is 2 into 5 is equal to 10. Length of your minor axis 2b, 2 into 3 that is 6. ये आपको हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन करा रहे बेटा, यहाँ से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको फिगर बताया था सारी वैल्यूज, तो इसीलिए आपको इसको ग्रैप्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इज बेटा योर इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, C/A। व्हाट इज C? 4 and A is 5, so this is your eccentricity. Then is your latest rectum, that is 2b square upon A. 2 into b is 3 square upon A is 5, 18/5। ठीक है, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको जो है इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करना है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है जो बेटा, वहां से आप उसको 9 को रिमूव कर दोगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, फिर सारा प्रोसेस सेम। एग्जाम्पल नंबर 11, 10 आप खुद से करेंगे। 10 डू योरसेल्फ। बस उसके अंदर जो ये इक्वेशन है ना आपकी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ से ना बेटा आपको ये 9 हटाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये 4 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36 से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। तो देखो 9x स्क्वायर बाय 36 प्लस 4y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 36/36। ये आपका बच गया x स्क्वायर बाय 4, ये आपका बच गया y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इसके बाद ये आपका x स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बच जाएगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जैसे ये सारा कराया वैसे आपका एग्जाम्पल 10 हो जाएगा। नाउ इज योर एग्जाम्पल 11, दैट इज से फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। Find the equation of ellipse whose vertices are plus minus 13,0 and foci are plus minus 5,0। Is it clear बेटा? Since the vertices are on x axis, यहाँ से पता चल रहा है वर्टेक्स x axis पे है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में since vertex is on x axis, वो यहाँ से पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन यूज होगी वो ये वाली होगी, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से बेटा हमें आपके a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे ये जो वर्टेक्स है ये a की वैल्यू हमें बता रहा है, तो a इज योर 13 और जो फोकस है वो हमें c की वैल्यू बता रहा है, c इज योर 5, ठीक है। फिर हमने देखो ये इक्वेशन बनाई थी आपको स्टार्टिंग में, a की वैल्यू ऐसे निकलती है, c की वैल्यू ऐसे निकलती है, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं आपकी। जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे बेटा, कौन सी वाली, ये वाली, c स्क्वायर इज इक्वल टू, यही वाली यूज कर लेते हैं, c इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर। यहां से हमारा आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, इससे बेटा ये आपका 25 आ गया और ये आपका आ गया 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वायर,
ये बी स्क्वायर इधर ले आओ, ये 169 माइनस 125 कर दो, 144 हो गया। तो बेटा बी की वैल्यू आ गई 12। इज इट क्लियर? सो आवर इक्वेशन विल बी, यहीं लिख देती हूँ साइड में, एक्स की ए की वैल्यू कितनी है बेटा 13, तो ये आ गया 13 स्क्वायर, और आपके बी की वैल्यू कितनी निकली 12, तो ये आ गया आपका 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस। जो मेन चीजें वो लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस that is given 20 and your foci is given 0, plus minus 5, और फाइंड क्या करनी है आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब आप देखिए फोकस किस पे है, y एक्सिस पे, तो जो हमारी इक्वेशन होएगी, सिंस फोकस इज ऑन y एक्सिस, हमारी इक्वेशन बेटा ये वाली यूज होगी, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? हमारा मेजर एक्सिस क्या है, ए इज आवर सेमी मेजर एक्सिस, और सेमी मेजर एक्सिस मीन्स 20 अपॉन, दैट इज मेजर एक्सिस अपॉन 2, सो ए इज 20 अपॉन 2, दैट इज 10। ठीक है, अब हमारे b की वैल्यू हमें चाहिए, फिर से हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a का स्क्वायर हो गया आपका 10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। c की वैल्यू बेटा, फोकस हमें किसकी वैल्यू देता है, फोकस गिव्स द वैल्यू ऑफ c, तो बच्चे c की वैल्यू हमारी क्या है 5, चलिए 5 पुट कर देते हैं, वी हैव c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये आ गया 25 इज इक्वल टू 100 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। ठीक है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 75। इज इट क्लियर? तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी वो क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। आपका एग्जाम्पल नंबर 13 भी सिमिलर है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 13 डू योर सेल्फ, and in today's homework beta, your homework is to complete exercise 11.3 in your fair notebook. In next class I will tell you the introduction of hyperbola, and then your chapter will be over. Is it clear बच्चे? So that's all for today's class. Thank you.